حضوری کے لیے، اس کے مسا کے لیے سب اس کی شکر گزاری کریں، سب اس کی شکر گزاری کریں، سب اس کی شکر گزاری کریں دل کی گہرائیوں سے۔ ہاللیلویا، خداوند نے اپنے جلالی کام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ہاللیلویا، مسا کے سبب سے جوئے ٹوٹ رہے ہیں، بندھن کھل رہے ہیں اور آپ آزاد ہو رہے ہیں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ شفا کے معجزات سے بڑھ کر آپ کے دل یسوع سے لگ رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں۔ ہاللیلویا، سب اس کی شکر گزاری کریں، 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 شکر گزاری کریں پاکرو کے مسا کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے، خدا پاکرو کے لیے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ خدا کی قدرت، پاکرو کا مسا بڑے زور سے یہاں کام کر رہا ہے۔ ہاللیلویا، اور رمان دے ربدے لبکھرے میں شاندار ربکھا اندر ربا شتر ربا دلبہا۔ ہاللیلویا، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں۔ وہ جلالی کام جن کی گواہیاں ہم نے سنی، اور وہ جلالی کام جو خدا پاکرو ابھی کر رہا ہے، اور وہ جلالی کام جو اپنے کلام کے قدرت سے کرنے کو جا رہا ہے، آئیں سب اس کی شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویا، کوئی زبان ادھر خاموش نہ ہو۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، ہم سارا جلال تیرے نام کو دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دونوں ہاتھ اوپر ہو اور میرے پیچھے یہ بولیں، خدا پاکرو تیرا شکر ہو تیری حضوری کے لیے، تیرے مسا کے لیے۔ خدا باپ، اس وقت تو مجھ سے بول اور مجھ سے کلام کر، اور میری زندگی کو اپنے کلام کی قدرت سے یکسر پورے طور سے ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ یسوع کے نام میں خدا پاکرو، میں اپنا دل، اپنا ذہن اور سارا وجود تیرے سپرد کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین، آمین۔ ہاللیلویا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں، اپنے ہاتھوں کو لہرائیں۔ ہاللیلویا، لہرائیں، 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 اور زوردار تالیاں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ آپ سب تشریف رکھیں خداوند کی پاک حضوری میں۔ ہاللیلویا۔ پالوس رسول، ہاللیلویا، روح القدس کی تحریک سے لکھتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، کیونکہ خداوند کی قدرت انجیل میں ہے۔ ہاللیلویا۔ I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe. خداوند یسوع مسیح کی انجیل خدا کی وہ قدرت ہے جس سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جہاں موت ہوتی ہے، جہاں مردگی ہوتی ہے، وہاں وہ زندگی کو لے آتا ہے۔ آمین۔ اور اس لیے انجیل کو خوشخبری کا پیغام کہا جاتا ہے۔ آمین۔ انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے۔ تو جب خوشی کی خبر ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ آمین۔ اس لیے کہ میرا یسوع موت اور قبر پہ فاتح ہوا ہے۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ اور اس لیے عزیزو، آج ہم اسی خوشخبری کے پیغام کو آپ تک پہنچائیں گے، اور خداوند کے کلام میں سے آج بہت سی آیات کو ہم دیکھیں گے یسوع مسیح کے خون کی قدرت کے تعلق سے۔ آمین۔ خدا کے ایک عظیم خادم ٹی ایل آسبرن ہوئے ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ کلیسیا میں، چرچ میں کیوں اتنی قدرت نہیں ہے؟
क्यों इतनी पावर नजर नहीं आती? तो उसने कहा कि गॉस्पल को प्रीच करो, क्योंकि इंजील को सुनाओ, क्योंकि इंजील में कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें नए नए बड़े जबरदस्त किस्म के टॉपिक्स पर मैसेज सुनाया जाए और नई नई इंफॉर्मेशन उनको दी जाए। बहुत अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, लेकिन जो हकीकी इल्म है, जो कुदरत का मंबा है, अगर वो कुदरत के साथ काम नहीं कर रहा तो दूसरे इल्म का कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरा फोकस हमेशा यीशु और उसकी सलीब पर रहता है। हालेलुया। क्योंकि सलीब ही है जिससे खुदा की कुदरत जारी हुई मेरे और आपके लिए, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत वाली पाएं। हालेलुया। तो हम खुदाम के कलाम में से देखें, हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। आप सुन रहे हैं, पतरस रसूल पाकरू की तहरीक से लिखते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी, तुम्हारी डिलीवरेंस, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी रिहाई, तुम्हारी मखलसी गैर फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई। आज जो समझते हैं ना कि दौलत बड़ी ताकत है, तो दौलत आपकी जिंदगी की तब्दीली में एक रत्ती भर भी कोई फर्क पैदा नहीं कर सकती। और इसीलिए खुदा का रूह हमें ये अवेयरनेस दे रहा है अपने रसूल के जरिया से कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी से के जरिया से नहीं हुई। हाँ जी, तो किससे हुई है? 19वीं आयत। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, किससे हमारी खलासी हुई है? मसीह के बेशकीमत खून से। हालेलुया। यीशु का खून, वो पाक और बेऐब खून, उससे हमारी क्या हुई है? खलासी हुई है, मखलसी हुई है, आजादी मिली है, रिहाई मिली है। आज लोग मायूसी और तंगियों में और प्रॉब्लम्स में और डिप्रेशन की हालत में इसलिए होते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह के खून की कुदरत को नहीं समझते कि यीशु के खून की कुदरत कितनी जबरदस्त है और कैसे यीशु का खून हमें खलासी देता है, रिहाई देता है, हमें रिडीम करता है, हमें आजादी देता है। बेसिकली जो मखलसी का जो मतलब है इंग्लिश में वो है रिडीम किए जाने का, रिडेम्पशन का, आजाद किए जाने का। वो आजादी इमांसिपेशन के थ्रू हो सकती है, यानी कि एक ऐलान के जरिया से, एक हुक्मनामे के जरिया से, या फिर खरीदे जाने से।
आमीन। और यीशु ने क्या किया है? यीशु ने जो अपना खून बहाया है वो उसने मेरे और आपके लिए कीमत अदा की है। हालेलुया। और वो जो बेशकीमत खून है, जिसकी वैल्यू, जिसकी कदर इन्फिनिट है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून है, उसकी कुदरत ला महदूद है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्यों? क्योंकि बहुत से रिलीजन्स और बहुत से लोग मसीहियत को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि जी ये बड़े खून के ताल्लुक से इनके बड़े बिलीफ्स हैं और कई जो हैं जो बड़े आज़ाद ख्याल हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अजीज हो, जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं और शुरू से ही पैदाइश की किताब से ही जब आदम और हवा से गुनाह सरजद हुआ तो उस वक्त भी उनको ढांपने के लिए जो 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 चमड़े की जो स्किन्स थी, जो जानवरों का चमड़ा था, वो बेसिकली खुदा ने खुद वहां वो उन जानवरों को ज़िबा किया और उनको उनके नंग को ढांपने के लिए खुदा ने खुद उनके लिए चमड़ों का इंतजाम किया ताकि उनके नंग को ढांपा जाए। तो शुरू से ही हम देखते हैं कि कैसे पैदाइश की किताब से जो कुर्बानियों का और जो ऑफरिंग्स हैं और खून के बहाए जाने का सिलसिला वो शुरू से ही हम देखते हैं। और फिर जब खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा तो वो अहद भी जो इब्राहिम के साथ खुदा ने बांधा था उसमें भी खुदा ने वहां उसको जानवरों को ज़बह करने के लिए और खून के बहाए जाने के लिए कहा। और वो खुदा का अहद था इब्राहिम और उसकी नस्ल के लिए, और वो भी खून से ही खुदा ने उसके साथ अहद वो किया था। और फिर वो जो अहद था वो बेसिकली जो अबदी अहद है जो यीशु मसीह के खून से यीशु ने खुद बांधा है। जब यीशु अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खा रहा था तो वहां यीशु ने कहा ये मेरा खून वो नए अहद का खून है जो बहुतेरों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब बनी इस्राएल मिस्र में थे और खुदा ने मूसा को वहां भेजा, दोबारा भेजा, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा वहीं फिरौन के महल में उसने परवरिश पाई। और फिर जब वहां उसने देखा जो दुख और जो जुल्म उसके लोगों के साथ हो रहा था और उसने वहां जब कुछ करने की कोशिश की तो उसको वहां से भागना पड़ा और वो बियाबान में आया और फिर खुदा उस पर जाहिर हुआ। फिर खुदा ने उसे वापस मिस्र में भेजा ताकि अपने लोगों को वहां से आजाद करवाए, वहां से डिलीवर करे। इसलिए मूसा को डिलीवरर का लक़ब भी दिया जाता है क्योंकि उसने बनी इस्राएलियों को वहां से निकाला था, मुल्क मिस्र की गुलामी से उसने आजाद किया था। और आपको याद होगा सारी मूसा की कहानी से आप वाकिफ हैं कि कैसे वो फिरौन के पास जाता है, फिरौन उसकी नहीं सुनता और फिर खुदा वहां उन पर आफतें भेजता है। खुदा अपनी अदालत
کرتا ہے ان کے ساتھ، اور مختلف طرح کے مصائب ان کے اوپر آتے ہیں. اور سب سے پہلا جو آفت خدا نے ان پر بھیجی وہ یہ تھا کہ پانی خون بن گیا. اور پھر اس کے بعد مختلف طرح کی جو آفتیں ان پر آئیں، مینڈکوں کی صورت میں، اور پھر مچھروں کی صورت میں، اولوں کی صورت میں، اور تقریباً 9 آفتیں اس طرح خدا نے ان پر بھیجیں. لیکن ان تمام آفتوں کے سبب سے وہ فرعون اور وہ نہیں مان رہا تھا کہ ان کو آزادی دے. لیکن جو آخری آفت تھی جس میں خدا نے اسے کہا تھا کہ اگر تو نہیں جانے دے گا تو تیرے پہلوٹے مارے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ تو بنی اسرائیلیوں کو کہہ دے کہ وہ کیا کریں، وہ برا لیں اور یا بکرا لیں یا برا لیں اور اس کو ذبح کریں اور اس کی قربانی گزرانے، اور پھر اس کا خون کیا کریں، وہ دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا دیں. ہلیلویا ہلیلویا. اور پھر کیا ہوا، جب وہ قربانی گزرانی گئی اور خدا کے حضور وہ فسح جو خدا نے انہیں حکم دیا تھا، انہوں نے وہ پیس اوور وہاں کیا، تو خدا نے کہا جب وہ موت کا فرشتہ وہاں ملک مصر میں سے گزر کرے گا، اور جس گھرانے پر خون لگا ہوگا، جہاں خون کی مہر ہوگی، وہاں سے وہ موت ٹل جائے گی. خون ان کی مخلصی بنا، خون ان کی خلاصی بنا. اس لیے بنا کیونکہ احبار کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں اس کے 17 باب کی 11ویں آیت میں خدا نے کہا تھا کہ خون میں نے تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے دیا ہے، اور خون جب بہایا جاتا ہے تو تمہاری اٹونمنٹ کی جاتی ہے، تمہارے گناہوں کو ڈھانپا جاتا ہے، تاکہ تم میری حضوری میں آ کر میری برکتوں کو اور وہ جو کچھ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں تم اس کو ایکسپیرینس کرے. یاد رکھیں کہ وہ ساری آفتیں جو ملک مصر پر آئیں، ان آفتوں کی وجہ سے وہ اس رات وہاں سے نہ نکلے، لیکن جس رات برا ذبح کیا گیا اور خون لگایا گیا، اور خون کی اہمیت کو جب بنی اسرائیلیوں نے پہچانا تو اسی رات ان کا وہاں سے وہ آزاد کیے گئے، ان کو وہاں سے مخلصی مل گئی، وہاں سے رہائی مل گئی. ہیلیلویا. عزیزو، جو نئے عہد کا ایماندار ہے، اس نئے عہد میں آج میں اور آپ جتنے یسوع مسیح اور اس کامل قربانی، اس کامل کفارہ پر ایمان لے آتے ہیں، تو یسوع مسیح کے خون کی قدرت، وہ بیش قیمت خون ہماری زندگیوں میں وہ قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے اور ہمیں گناہ سے وہ آزاد کرتا ہے، مخلصی دیتا ہے، رہائی دیتا ہے، گناہ کے زور کو ہماری زندگیوں میں وہ توڑ دیتا ہے، اور موت اور ہلاکت جو ہماری زندگیوں میں گناہ کے سبب سے آتی ہے، اس موت اور اس ہلاکت کو ہماری زندگیوں سے وہ دور کر دیتا ہے. ہیلیلویا. آج میں نے اور آپ نے خداوند کے کلام میں سے ان باتوں کو آج سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں، اپنے ذہنوں اور اپنے دلوں پر ہم نے نقش کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح جو بیش قیمت اس کا خون ہے، کیوں وہ بیش قیمت ہے، اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ نہ صرف ماضی میں جتنے لوگ
दुनिया की हिस्ट्री में हुए हैं, और उन्होंने जो उन नबियों के जरिया से कलाम सुना मसीहा के ताल्लुक से, और वो फ्यूचर में देखते थे, और फ्यूचर में जो मसीहा के इंतजार में थे, मुंतजर थे, जिनका मसीहा पर ईमान था, ना सिर्फ उनके गुनाहों को यीशु मसीह का खून कवर करता है, बल्कि इस वक्त जितने भी 8 बिलियन लोग हैं, और जितने भी लोग आज यीशु पर ईमान ले आएंगे, यीशु मसीह का बेशकीमत खून, इस कदर उसमें कुव्वत है, इस कदर उसमें कुदरत है, उसकी कदरों कीमत इस कदर ज्यादा है कि न सिर्फ ये 8 बिलियन लोगों के गुनाहों को वो कवर कर सकता है, बल्कि दूर करता है, और उसके साथ साथ जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं, चाहे वो कितने ही बिलियंस क्यों ना हो, उनके गुनाहों को भी यीशु मसीह का खून पूरी तरह से कवर करता है और दूर करता है। ये उसके खून की कदर कीमत, और इसीलिए वो बेशकीमत खून कहा गया। एहबार की किताब उसके 4थे बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां मुख्तलिफ ग्रुप्स के ताल्लुक से, अब इब्रानियों जो एहबार की किताब है, वहां मुख्तलिफ कुर्बानियों का जिक्र है, और वो कुर्बानियां सब यीशु मसीह की वो तस्वीर थी, वो रियलिटी नहीं थी, क्योंकि बैल लिखा है कि बैलों बकरों बछड़ों का खून काफी ना था, वो सिर्फ एक पिक्चर थी, लेकिन रियलिटी जो हकीकत है वो यीशु मसीह की वो कामिल कुर्बानी थी, जो यीशु मेरे और आपके लिए सलीब पर बना। हालेलुया। अब एहबार 4थे बाब में जब हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोगों के ताल्लुक से पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप घर जाकर जो पढ़ सकते हैं जरूर इसको पढ़ें। एहबार 4थे बाब में वहां मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोगों के लिए मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानियां थी, और वो इसलिए मुख्तलिफ जानवर थे, और उस सारे बाब में से हम ये अर्ज करते हैं कि मुख्तलिफ जो जानवर थे, जैसे कि एक यंग बुल, यानी कि जो एक बछड़ा था, एक जवान बैल और बछड़ा, उसके खून की कदर एक बर्रे या एक बकरे या बकरी से उस खून की कदर ज्यादा थी। और इसी तरह से अजीजों, जो एक इंसान है, इंसान का जो खून है वो जानवरों के खून से कहीं ज्यादा वैल्यू रखता है, कहीं ज्यादा उसकी कदर है। लेकिन अजीजों, मेरे और आपके यीशु के खून की जो कदर हो कीमत है वो लामहदूद है, वो बेशकीमत है। इसीलिए उसका खून आज इंसान के सारे गुनाहों को धोता और पाक साफ करता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के बेटे का खून है जो बिल्कुल पाक और बेऐब है। हालेलुया। और उसमें इलाही कुदरत है। आए हम एक हवाला देखें जल्दी से, इब्रानियों का खत, उसका इब्रानियों का खत और उसका 13वां बाब, अमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 28वें, जल्दी से मौजम निकालें। हालेलुया। आज हम बहुत से हवालों को देखेंगे। हाँ जी, अमाल 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। बस अपनी और उस सारे गल्ले की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। हालेलुया। जरा आपने अल्फाज पर गौर किया? आज दोबारा से मौजूद पढ़े। बस अपनी और उस सारे गल्ले की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। हालेलुया। जिसे उसने खास, बोले खास, अपने खून से। और बेसिकली यहां खुदा का रूह जो हमें सिखा रहा है कि ये वो इलाही ब्लड है, ये वो खुदा के बेटे का खून जो खास खून है। और एंड्रू मरे ने बड़े ही जबरदस्त अल्फाज में
यूं कहा, जो ताकत यीशु मसीह के खून में है, उसकी तासीर का हर पहलू किसी तौर से भी खुदा की अब्दी कुव्वत से कम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब यीशु के खून की बात कर रहे होते हैं तो ये खून कैसा खून है? ध्यान से सुने, ये खुदा के बेटे का वो खून है जो पाक और बेऐब है, जिसमें खुदा की वो लामहदूद कुव्वत और कुदरत पाई जाती है, जिससे हमें मुकम्मल तौर से मुखलसी मिलती है। और एंड्रू मरे यूं कहते हैं, जो ताकत यीशु मसीह के खून में है, उसकी तासीर यानी कि उसका असर, उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत का हर पहलू किसी तौर से भी खुदा की अब्दी कुव्वत से कम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। और कितना जलाली ख्याल है। और इसीलिए हमें हमारे अंदर एक मजबूत ईमान होना चाहिए, जिसमें जरा सा भी शक नहीं पाया जाना चाहिए कि जब मैं यीशु के नाम को पुकारता हूं, यीशु के खून को पुकारता हूं, तो यीशु का नाम ही काफी है, यीशु का खून ही काफी है मेरी जिंदगी के हर पहलू के लिए, मेरी जिंदगी के हर एरिया के लिए। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह का खून कुदरत के साथ काम करता है, मुझे अंदर से बिल्कुल नया बना देता है, आजाद कर देता है। क्योंकि याद रखें, जो गुनाह की गुलामी है, इससे बड़ी और कोई गुलामी नहीं। गुनाह की जो गुलामी है, ये इंसान के लिए अबदी हलाकत का सबब है। गुनाह की गुलामी सबसे खतरनाक किस्म की गुलामी है। और इब्लीस आपको और दुनिया को और बेईमानों को इस गुलामी में और इस हलाकत में, इस मौत में वो रखना चाहता है। और इसीलिए लोग आज, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई दफा ज़ाहिरी तौर से तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके लिए अच्छा चल रहा है और वो एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन जब यीशु पर ईमान नहीं रखते, यीशु के खून की कुदरत को अपने अंदर नहीं लेते, और यही वो लोग हैं, शायद वो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन अगर उनको इस अब्दी हलाकत से और गुनाह की गुलामी से आजादी नहीं मिली, तो वो इस कदर मायूसी की हालत में होते हैं, इस कदर खौफ में रहते हैं, इस कदर बेइत्मीनानी की हालत में होते हैं कि दुनिया की कोई चीज उन्हें किसी तरह से भी सुकून और इत्मीनान नहीं दे सकती। इसलिए अजीजों, आज मैंने और आपने एक ईमानदार होने के नाते से यीशु मसीह के खून के कुदरत को अपनी जिंदगी में पूरे तौर से लेना है, और वो पूरे तौर से उसी वक्त हम लेंगे, उसी वक्त यीशु का खून हमारी जिंदगी के एक एक एरिया में कुदरत के साथ काम करेगा, जब मैं और आप अपने दिलों को, अपने ज़हनों को, अपने वजूद को पूरे तौर से उसके हुजूर लाके रख देंगे और उसे कहेंगे हालेलुया। गौर से सुने, गौर से सुने कि खुदावन, जैसे तूने अपने आप को बाप के सामने टोटली और कंप्लीटली पेश कर दिया, टोटल सरेंडर में। कुछ ही हफ्ते पहले जब मैं यीशु के खून पर गौर कर रहा था, तो खुदा के रूह ने ये मुकाशिफा मुझे दिया कि अगर तू चाहता है कि
یسوع کا خون، وہ ابدی اور پاک اور بے عیب خون تجھے مکمل طور سے مخلصی دے، تیری زندگی کے ایک ایک ایریا میں قوت ہی قوت اور برکت ہی برکت ہو۔ تو جس طور سے یہ خون بہایا گیا تھا، کس طور سے؟ یعنی کہ یسوع نے باپ کے سامنے اپنے آپ کو پورے طور سے پیش کر دیا۔ اس نے کہا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو، اور اس نے ٹوٹل سرنڈر میں جب اپنے آپ کو دے دیا، اسی طرح سے آج میں اور آپ جب ٹوٹل سرنڈر کے ساتھ پورے اپنے وجود اور ذہن اور دل سے یسوع مسیح کو اپنا مالک اور بادشاہ مانتے ہوئے یسوع مسیح کے خون کا یقین کرتے ہیں کہ اس کی قوت اور قدرت لامحدود ہے، اور میری زندگی میں گناہ کے جتنے بھی بندھن ہیں، جوے ہیں، وہ سب جوے اور بندھن توڑنے کی ساری قدرت رکھتا ہے۔ تو عزیزو، ہم اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی کو ایکسپیرینس کریں گے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک ایریا خداوند یسوع مسیح کی قوت اور قدرت سے پاک اور صاف ہوگا، اور ہم اس کے جلال کے لیے زندگی بسر کریں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی قدرت کو زندگی کے ایک ایک ایریا میں ایکسپیرینس کریں۔ اب ذرا غور سے سنیں، جو کفارہ کا لفظ ہے، اٹونمنٹ کا لفظ ہے، جس کے تعلق سے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے تمہیں یہ خون دیا ہے تاکہ تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارے کا مطلب ہے ڈھانپنے کا، کور کرنے کا، یعنی کہ گناہ کے سبب سے جو تمہاری صورت بگڑ گئی ہے، تم جو خدا سے دور ہو گئے ہو، گناہ کو ڈھانپا جاتا ہے تاکہ خدا کی حضوری اور قربت میں آ سکو۔ تو جو کفارہ ہے، جو ایک گنہگار کا کفارہ ہے، جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ خداوند کی قدرت کیا کرتی ہے؟ اب جب قربانیاں گزرانی جاتی تھی تو اس وقت جو لوگ قربانیاں لے کر آتے تھے، بیلوں کو، بکروں کو، بچڑوں کو، بروں کو، تو وہ ہاتھ اس پر رکھتے تھے تاکہ ان کے گناہ اس جانور پر ٹرانسفر ہوں۔ اور اسی طرح سے جب سردار کاہن بھی امت کے گناہوں کو جب وہ خدا کے حضور ان کا اقرار کرتے تھے اور ان جانوروں پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اپنے گناہوں کو اس پر لادتے تھے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جب یہ جانور ذبح ہو اور اس جانور کی قربانی دی جائے اور یہ جانور جان سے مارا جائے، اس کو ختم کیا جائے اور اس کا خون بہایا جائے، تو اسی طرح سے جو گناہ اس پر لاد دیے گئے ہیں، وہ گناہ بھی اسی طرح سے اس موت کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، پالوس رسول روح کی تحریک سے لکھتا ہے کہ گناہ اب تمہاری زندگیوں پر حکمرانی نہ کرنے پائے، اس لیے کہ گناہ کا علاج یسوع مسیح کے خون اور اس کامل کفارہ کے سبب سے کر دیا گیا ہے۔ گناہ کا زور توڑ دیا گیا ہے، گناہ کو یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ختم کر دیا گیا ہے، تاکہ میں اور آپ مکمل طور سے اس کی مخلصی اور اس کی آزادی کو ایکسپیرینس کریں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بار بار سکھاتا ہے، اور خدا کے کلام میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ خداوند ہمیں پورے طور سے وہ زندگی کے ایک ایک ایریا میں وہ بلیس کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے دوسرا کرنتھیوس کے 5ویں باب کے 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہمارے لیے گناہ بن گیا۔ وہ جو گناہ اس نے میرے اور آپ کے اپنے اوپر لیے، وہ گناہ بن گیا تاکہ اس میں، یسوع مسیح میں جب ہم ایمان لے آتے ہیں، اس کے ہو جاتے ہیں، اس میں ہو کر خدا کی راست بازی
बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें कि यीशु का खून वो लामहदूद वो कुव्वत और कुदरत रखता है, जिसके सबब से आज मेरी और आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर से वो पूरे तौर से हमें पाक साफ किए हुए हमारी जिंदगी में से हर वो चीज जो हमें किसी बंधन में बांधती है, खासकर गुनाह के बंधन में, आजमाइशों के बंधन में, वो हमें उससे मुकम्मल तौर से आज़ाद करता है। याद रखें कि यीशु मसीह का जो खून है, यीशु मसीह की जो मौत है, उसने ना सिर्फ शरीयत की जो सज़ा है उसको उसने पूरा किया, बल्कि उसके साथ साथ जो शरीयत की डिमांड्स थी, उसकी पाकीज़गी की जो शराइत थी, यीशु मसीह ने अपना कामिल खून देकर उसको पूरा किया और बाप को जलाल दिया है। हालेलुया। अब ज़रा हम चंद लम्हों के लिए ये देखेंगे कि यीशु के खून ने मेरे और आपके लिए अकम्प्लिश क्या किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 20वीं। जल्दी से हम इन हवालों को देखेंगे और फिर हम बढ़ेंगे खुदा पाक रू की हुजूरी में। इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 20वीं, गौर से सुने। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु को अबदी अहद के खून के बाइस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। हाँ जी, क्या किया उसने? अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु को अबदी अहद के खून के बाइस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। किसके बाइस? हाँ जी, किसके बाइस? अबदी अहद के खून के बाइस। अबदी अहद के खून के बाइस उसने क्या किया है? यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। क्यों? क्यों? हालेलुया। अबदी अहद का खून जो यीशु ही का खून है, उसकी उस लामहदूद कुव्वत और कुदरत के सबब से खुदा का रूह हमें यह सिखाता है कि यीशु को उसने मुर्दों में से जिंदा किया। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि यीशु के खून के सबब से जो जी उठने वाली कुदरत उस वक्त वहां पाकरू की वो कुव्वत और कुदरत जिससे यीशु मुर्दों में से जलाया गया, वो कुव्वत और कुदरत, वो जी उठने वाली कुदरत, वो भी यीशु मसीह के खून के सबब से, उस कुव्वत और कुदरत के सबब से, रूहुल कुद्स के कुव्वत और कुदरत के सबब से, यीशु का खून जो पाक और बेअब है, उसी के वसीला से यीशु जिंदा किया गया। यानी कि उसने कब्र पर और मौत पर उसने फतह पाई यीशु के खून के वसीला से। आज मेरे और आपके लिए यीशु ने जो खून बहाया है, वो जी उठने वाली कुदरत जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो कुव्वत और कुदरत आज हमें भी हमेशा के लिए हमारी कब्रों में रहने नहीं दे, क्योंकि यीशु का खून जो जीतने वाली कुदरत के साथ हमारी जिंदगियों में उस लामहदूद कुदरत के साथ काम करता है। अजीजों, जब यीशु आएगा और जब यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो लिखा है जो मुए हैं, जो मर गए हैं या जो खुदावंद में सो गए हैं, खुदावंद वो खुदावंद में जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे? क्यों जी उठेंगे? क्योंकि यीशु मसीह के खून की जो लामहदूद और बेशकीमत, जो उसकी कदर
कीमत है, वो उस मौत की सजा, गुनाह की जो सजा मौत है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए कब्र हमें अपने अंदर नहीं रख सकती। हमारे ये बदन जब मट्टी में मिल जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे, तो इन बदनों के जर्रों को भी खुदा पाखरू यीशु मसीह के खून के वसीला से इकट्ठा करके हमारे इन बदनों को वो जलाली सूरत दे देगा। इसलिए मौत और कब्र हम पर किसी तरह से भी अपना तसल्लुत जमा नहीं सकती। हालेलुया। उसी तरह से जैसे यीशु मुर्दों में से जलाया गया, हालेलुया, और बड़े वाज़िह तौर से खुदा का रूह कहता है कि उस अबदी अहद के खून के वसीला से वो मुर्दों में से जिंदा किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और हवाला देखें, गौर से सुने। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 56 आयत को हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो मौत पर जो गालिब आया है, और इसीलिए उसे कहा गया कि वो डेथ डिफीटर है। हाँ जी, पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 56 आयत को गौर से सुने, ध्यान से सुने। मौत का डंक गुनाह है, हालेलुया, और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। हालेलुया। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, और यीशु ने अपने खून के बहाए जाने के सबब से क्या किया? शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा किया है। हालेलुया। और अब गुनाह का जोर हम पर नहीं रहा, मौत का हम पर जोर अब नहीं रहा। एक और हवाला देखिए जल्दी से, इब्रानियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत, जल्दी से गौर से सुने और ध्यान से सुने। हालेलुया। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। इब्लीस को क्या करे? क्या करे? इब्लीस को उसने तबाह कर दिया। इब्लीस का अब एक ईमानदार की जिंदगी पर कोई असर नहीं है। मौत को उसने मौत दे दी है और इब्लीस को उसने तबाह कर दिया है। कैसे? अपने खून से। क्यों? क्योंकि उस खून में अबदी कुव्वत पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप इब्लीस से फिर क्यों डरते? जरा मनु अज दसो दे सही है जरा, क्यों तुसी बदरूहां तो डरते हो? बहुत से लोग आते हैं और बदरूहों से डरे होते हैं, खौफ ज़दा होते हैं। जो बदरूहों का सरदार है इब्लीस, उसको यीशु ने तबाह कर दिया, और पौलुस रसूल कहता है खत में कि उसका उसने बरमला तमाशा बनाया है सलीब पर। हालेलुया। और फिर हम दूसरा कुरिन्थियों के 10वें बाब में पढ़ते हैं कि हमारे हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलहों को ढा देने के काबिल है। हालेलुया। तो आप क्यों? हालेलुया, हालेलुया। आए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। मौसम इस आयत को दोबारा से पढ़ें। उसने इब्लीस को तबाह कर दिया है। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। आमीन। और फिर 15वीं आयत में लिखा है, जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। आप उस गुलामी से निकल आए हैं, गुनाह की गुलामी से, इब्लीस की गुलामी से। क्यों फिर आप उस गुलामी में जिंदगी बसर करते हैं? क्यों गुनाह और गुनाह की आजमाइशों में जिंदगी बसर करते रहते हैं और इब्लीस से डरते रहते हैं? आपको यीशु ने मखलसी दे दी है अपने बेशकीमत खून से। हालेलुया, हालेलुया।
क्यों अक्सर जब कई दफा बदरू गिरफ्तार लोग आते हैं और आजाद होते हैं, क्यों मैं उनसे खून का इकरार करवाता हूं? क्योंकि अजीजो, यीशु का खून वो ऐसा बेशकीमत खून है, उसकी कदरों कीमत जो ला महदूद है। उस खून के सबब से हमारी मखलसी, हमारी आजादी, रिहाई को उसने सील कर दिया है। और इब्लीस यीशु के खून के सामने वो ठहर नहीं सकता, क्योंकि ये वो सच्चाई है जो अबदी और इलाही सच्चाई है, जिसके सबब से हम दिलेरी के साथ, आजादी के साथ खुदा के जलाल के लिए जिंदगी बसर करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और हवाला जल्दी से देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस पहला बाब 10वें आयत, यहाँ यूं लिखा है, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यीशु के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका की उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह के खून में वो अबदी अल्लाही कुव्वत और कुदरत है, जिससे वो हमेशा के लिए हमें आज़ाद करता है। और यीशु मसीह के खून का जो इफेक्ट्स हैं वो इंसानी सोच से बालातर है। इंसानी सोच उसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकती, उसको समझ नहीं सकती कि किस तौर से यीशु का खून बड़ी कुव्वत और कुदरत के साथ हमारी जिंदगियों में वो काम करता है। और फिर हम देखते हैं इब्रानियों खास का 9वां बाब उसकी 12वीं आयत, जल्दी से पढ़ दें, जल्दी से पढ़ दें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। अबदी खलासी उसने हमारी करवाई है। और कैसे उसने ये हमारी खलासी करवाई है, हम आगे पढ़ते हैं। इब्रानियों 12वें बाब की 22वीं और 24वीं आयत को भी हम जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ दें। इब्रानियों 12वां बाब उसकी 22वीं और 24वीं आयत, सबने ध्यान से सुना है। जीजो, ये वो सच्चाई है, जब आप इसको थाम लेंगे, अपने ज़हनों दिलों पर नक्श कर लेंगे, कभी इब्लीस और मौत और गुनाह आपको कभी भी वो किसी तरह से भी अपने बंधन में नहीं रख सकता। जी पढ़ दे जल्दी से। बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पहलौठों की आम जमात यानी कलीसिया, जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सब के मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो, जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। हालेलुया। अगर आपने ध्यान से सुना है तो अजीजों, मैं इसको दोबारा से पढ़ना चाहता हूं। बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पहलौठों की आम जमात यानी कलीसिया, जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, सब के मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों, कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो, जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। क्योंकि लिखा है कि हाबिल का खून तो बदले के लिए पुकारता है, लेकिन यीशु का खून माफी के लिए पुकारता है। गौर से सुने, यीशु का खून जब उसने मौत और कब्र और गुनाह पर फतह पाई है, तो अब जो एक और बड़ा काम यीशु के खून से हुआ है, वो ये कि आसमान मेरे और आपके लिए खुल गया है। हालेलुया, हालेलुया। आसमान यीशु के खून से खुल जाता है जब एक शख्स
यीशु पर दिल से ईमान ले आता है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम आसमानी यरूशलेम के पास आए हो। हालेलुया। और फिर इब्रानियों 4 बाब उसकी 16वीं आयत भी हम पढ़ेंगे, गौर से सुने। हालेलुया। थैंक यू। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। कैसे फजल के तख्त के पास दलेरी से कैसे जाएं? दलेरी से, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें। और फिर एक और जगह लिखा है कि यीशु के खून के सबब से हमें उसकी पाक हुजूरी में दलेरी है। हालेलुया। अजीजो, अब ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है, ये आजादी, ये रिहाई, ये गुनाह और मौत और इब्लीस पर फतह और आसमानी यरूशलेम का हमारे लिए खुल जाना और खुदा के जलाल में और उसके फजल के तख्त के सामने जाना और उसके जलाल में जिंदगी बसर करना, ये आज हर एक ईमानदार के लिए है। आज सिर्फ मैं ही नहीं, पास्टर सालिक जॉन बरकत ही नहीं कि उसको उसकी दुआओं का जवाब मिलता है। हाँ अजीजों, खुदा किसी का तरफदार नहीं, वो आपकी दुआओं का जवाब भी देना चाहता है। वजह सिर्फ एक ही है, गौर से सुने। आज हम ये जानते तो हैं और सुना है, बल्कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यीशु का खून हमें मखलसी देता है, यीशु का खून हमें आजाद करता है। और भी बहुत से हवाला जात है जो मैं आपके सामने पढ़ सकता हूं, लेकिन आज इस मैसेज को मैं यहां क्लोज इस बात से करूंगा कि जो यीशु के खून की कुदरत का इल्म है, रोशनी है, उसको आज हमने सिर्फ एक मजहबी अकीदा समझ के सिर्फ अपने ज़हनों तक महदूद नहीं रखना, बल्कि उसको अपने दिल में उतारना है, दिल पे नक्श करना है कि ये जो कुछ कहा गया है, आज मैं इस फतह में, आज मैं इस खुदावंद के फजल में, आज मैं खुदा की इन बरकतों में जिंदगी बसर कर सकता हूं। इसलिए कि ये जो इंजील का पैगाम जो मैंने सुना है और सुनता रहता हूं, ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, बल्कि इसको मैं दिल से कबूल करके अब इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता हूं। लेकिन अलमिया ये है, प्रॉब्लम ये है, लोग ये सब कुछ जानते हुए भी खुदा की इस जलाली कुदरत को, यीशु मसीह के खून की कुदरत को पूरे तौर से एक्सपीरियंस नहीं करते। 1 जनवरी 1863 में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की, जिसका मतलब है कि जितने अफ्रीकी लोग वहां गुलाम बन के आए थे, 1863 में अब्राहम लिंकन ने उनकी आजादी का ऐलान कर दिया। और जिन जिन स्टेट्स में, जिन जिन इलाकों में यह खबर पहुंची, वो अफ्रीकी लोगों को जो गुलामी में थे, जो जुल्म उठा रहे थे और गुलामी वाली जिंदगी, हाँ गोरों ने अफ्रीकी लोगों को गुलाम बना के रखा था। ये ऐसा दौर भी वेस्ट में आया है, अमेरिका में खासकर, और इसी सबब से वहां जंग भी, सिविल वॉर भी लगी, और इसी सबब से इस सारी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब्राहम लिंकन एक खुदातर शख्स था और खुदा खौफी में उसने
अफ्रीकी लोगों की गुलामी की आजादी का ऐलान कर दिया कि अब कोई भी अफ्रीकी स्याफाम शख्स किसी भी तरह से गुलामी में जिंदगी बसर नहीं करेगा, और वो लोग आजाद किए गए, आजाद हो गए। गो के काफी साल लगे बहुत सी चीजों को नॉर्मल में आने के लिए, और अभी तक भी कई जगहों पर तासुब भी पाया जाता है। लेकिन कई ऐसे इलाके भी थे जहां तक ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो थी, आजादी का ऐलान जब उन इलाकों में नहीं पहुंचा, तो अफ्रीकी वो जो लोग थे उसी तरह कई महीने और कई साल गुलामी की हालत में ही रहे, और वो गुलामी की जिंदगी बसर करते रहे, इसलिए कि उन्होंने उस ऐलान को ना सुना। आज मसीह यीशु की इंजील का पैगाम, यीशु मसीह के खून की कुदरत का पैगाम आपको सुनाया जा रहा है। आपने आजादी का ऐलान सुन लिया है कि अब गुनाह और मौत और इब्लीस और कब्र और ये दुनिया के हालात आप पर किसी तरह से भी अपना तसल्लुत, अपनी गुलामी, अपना डिप्रेशन, अपने हालात, गुनाह की आजमाइशें, गुनाह के बंधन में आप नहीं रह सकते। तो अजीजों, अब आपने दिल से ईमान ले आके इस खुशी के पैगाम को, इस आजादी के ऐलान को जो यीशु का खून आज हमें देता है कि हम आजाद हैं, अब हम गुनाह के बंधन में नहीं, इब्लीस के जुए में नहीं है, मौत का खौफ हमारे ऊपर से जाता रहा है। दुनिया के हालात और दुनिया के लोग किसी तरह से भी हम पर किसी तरह से हुक्मरानी नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने हमें अंदर से अपने खून की कुव्वत और कुदरत से आजाद कर दिया है। हालेलुया! आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। हालेलुया! अजीजों, आज हमने यीशु के खून की कुदरत को जाया नहीं जाने देना। यीशु के खून की कुदरत को जब आप लेंगे, आप गुनाह और गुनाह के असरात से आजादी पाएंगे। बहुत सी बीमारियां, बहुत से जुए, बहुत से बंधन, बहुत सी बदरूहों के जो बदरूहों के सबब से सिताए जाते हैं, वो गुनाह के सबब से, अपने गलत फैसलों के सबब से। लेकिन खुशी की खबर यह है कि यीशु का खून आज आपको मखलसी देता है। गुनाह के असरात से वो आपको छुड़ाता है। आइए हम सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और अपने आप को यीशु के हुजूर लाकर उससे कहें, यीशु तू मुझे माफ कर कि जिस तौर से मुझे तेरे खून की कुदरत को अपनी जिंदगी में लेना चाहिए था, और जिस तौर से तेरे खून की कुदरत को मेरी जिंदगी में काम करना चाहिए था, मैंने उसको काम नहीं करने दिया अपनी बेईमानी के सबब से, अपने शक के सबब से। लेकिन आज मैं पूरे तौर से अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करता हूँ, तेरे खून की कुदरत को पूरे तौर से अपनी जिंदगी में ले लेता हूँ। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और मेरे पीछे ये इकरार करें, ऐ प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो तेरे बेटे यीशु के लिए। तेरे बेटे यीशु का खून आज मुझे मुकम्मल तौर से मखलसी देता है, आजाद करता है।
खुदावंद यीशु मसीह, तेरे खून के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। आज के दिन तेरे खून की कुदरत को पूरे तौर से अपनी जिंदगी के एक एक एरिया में मैं ले लेता हूं। यीशु, तेरा खून मेरे लिए काफी है। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और आप शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। और सब 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 दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया। मैंने अपनी रूह में फील किया है कि बहुत से लोगों को कलाम सुनते ही जब आप कलाम सुन रहे थे तो उसी दौरान, कलाम के दौरान, मैसेज के दौरान बहुत से लोगों ने अपने मौजूज़ों को रिसीव किया है। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के खून की कुदरत को एक्सपीरियंस किया है। यीशु मसीह के खून की कुदरत और कुव्वत आपके बदनों में उसने काम किया है और कर रही है। हालेलुया। आइए आप बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरख्वास्तें, अपनी मिन्नतें, अपनी दरख्वास्तें उसकी हुजूरी में पेश करें। सब 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 हालेलुया। पुकारे पुकारे पुकारे, क्योंकि यीशु का खून कुदरत के साथ यहाँ काम कर रहा है। यीशु का खून कुदरत के साथ आपको आजादी दे रहा है। यीशु का खून, हालेलुया, वो ऐलान कर रहा है। हाँ, हाबिल का खून तो बदले के लिए पुकारता है, लेकिन यीशु का खून माफी के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बेहतर बातें कहता है, वो आजादी की बातें कहता है, वो रिहाई की बातें करता है। यीशु का खून आज आपकी आजादी का ऐलान है। हालेलुया। यीशु के खून की कुदरत आपके लिए काफी है। यीशु मसीह के खून की कुदरत आज आपकी जिंदगियों को मुकम्मल तौर से पूरे तौर से हालेलुया मौत पर, हाँ, गुनाह पर और इब्लीस पर वो फतह देता है। हालेलुया। यीशु का खून और रामांडे रेबेले लेबे केरे बेसे के, हाँ, पुकारे 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 पुकारे, दिल की गहराइयों से पुकारे। आज आप पहले जैसे वापस न जाएंगे, आप बदल के जाएंगे, अपने मौजूदे को लेके जाएंगे, जिंदगी की तब्दीली को लेके जाएंगे। यीशु के खून की कुदरत आपकी जिंदगी के हर जुए को वो तोड़ के रख देगी। हालेलुया, हालेलुया। पुकारे पुकारे पुकारे, यीशु के खून को पुकारे, यीशु के नाम को पुकारे। अभी कोई इधर उधर मूव ना करे, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे, सब अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाए, क्योंकि ये मैं नहीं, ये खुदा का रूह है जो आपको आजादी बख्शेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पुकारे पुकारे पुकारे। यीशु का खून कुदरत के साथ आपके बदनों में काम कर रहा है। यीशु का खून कुदरत के साथ आपकी जानों पर काम कर रहा है, आपके बंधन खोल रहा है, आपके जुए तोड़ रहा है। यीशु का खून आपको आजाद कर रहा है। यीशु का बेशकीमत खून, वो अबदी खून जो खुदा की अबदी इलाही कुव्वत और कुदरत को आपकी जिंदगियों में मैनिफेस्ट कर रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। आपके जुए टूट रहे हैं, आपके बंधन खुल रहे हैं। हालेलुया। और बहुत से नौजवान जो नशों की हालत में है, आपका नशा यीशु का खून तोड़ रहा है। यीशु के खून के सबब से आपके जुए टूट रहे हैं। गुनाह और गुनाह की खसलत आपकी जिंदगी से यीशु के खून की कुदरत के सबब से खत्म हो रही है। हालेलुया। अगर आप दिल से पुकारेंगे, ईमान से पुकारेंगे, ओ रहमान दे रेबेले लेबे कहे अंदर रबासा थाला बाका रिबाला मंदर रबाका। हालेलुया। जितने खुदाम है वो अगर जुबान में दुआ करें, क्योंकि खुदा का रूह, हालेलुया, लिखा है कि उसने खून जब बहाया तो वो इलाही
रूह के वसीला से उसने हमें वो आजाद करता है। यीशु का खून इलाही रूह के वसीला से जो बहाया गया, वो इलाही रूह, वो खुदा का रूह यीशु के खून को लेता है और हमारी जिंदगियों में यीशु की कुव्वत और कुदरत को, आसमानी बाप की कुव्वत और कुदरत को, और उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए वो खून बहाया गया था, वो मकसद पूरा करता है। अजीजों, यीशु का खून की कीमत जो है हमारे सारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया। ओ रमांडे रेबे कहे अंदर रबा शतला कहा, ए रमांडर रबाला बकहा। हालेलुया। यीशु का खून, हालेलुया। मैं यीशु के खून की कुदरत को एक बड़ी कुव्वत और कुदरत की लहर की सूरत में देख रहा हूं, बल्कि एक ऐसी लहर की सूरत में, एक ऐसी वेव, वो यीशु के खून की कुव्वत और कुदरत आपके ऊपर आ रही है कि आप आजादी पा रहे हैं, रिहाई पा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। आप पहले जैसे नहीं है यीशु के खून के सबब से। हालेलुया, हालेलुया। सबके हाथ ऊपर हो, सबके हाथ ऊपर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब वो मांगे, वो मौजज़ा मांगे, वो शिफा मांगे, वो बरकत मांगे, जो खुदावंद आज आपको देना चाहता है और जो आप उसके हुजूर कई सालों से मांग रहे हैं। हालेलुया। आज वो मौजज़ा आपको मिलेगा, आज वो बरकत आपको मिलेगी, क्योंकि यीशु के खून के सबब से जो रुकावट थी वो जाती रही है। हालेलुया, हालेलुया। मसा फ्लो हो रहा है। हाँ, मसा 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 को रामांडा रबा सताला बका। यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप, तेरे लोग जो इस वक्त तेरे हुजूर में अपनी दुआएं, मुनाजात, गुजारिशात पेश कर रहे हैं, एक एक की दुआ दरख्वास्त को सुन और एक एक की जिंदगी में आज एक बड़ा मौजज़ा, आज एक बड़ा मौजज़ा रूनुमा हो। सबसे पहले यीशु के खून की कुदरत आज इन्हें मुकम्मल तौर से आजाद करे, आजादी बख्शे, और ये उस आजादी को फील करे, उस इत्मीनान को ये आज ये फील करे और प्रॉपर्ली रूह की कुव्वत और कुदरत से आज ये आजाद हो जाए यीशु के नाम में। और गुनाह के असरात भी इनके बदनों से, इनकी जानों से जाते रहे। हर तरह का डिप्रेशन जाता रहे, हर तरह की बदनी बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का कैंसर अभी खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सर से लेकर पांव तक खुदावंद यीशु तेरी शिफा देने वाली कुव्वत और कुदरत गुजर करे। यीशु तेरे खून की कुव्वत और कुदरत इनके बदनों में से गुजर करे और ये इसी लम्हा हालेलुया शिफा पाए, बरकत पाए। हर तरह की गिल्टी सॉलिड डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। गुर्दे और पित्ते की पथरियां डिसॉल्व हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हड्डियों की बीमारी, हड्डियों की तकलीफ, गंठिया यीशु के नाम में जाता रहे। हड्डियों का कैंसर यीशु के नाम में जाता रहे। हाँ, दिल के वाल्व्स खुल जाए, दिल की बीमारियां जाती रहे, दिल नए हो जाए, दिल तवाना हो जाए, दिल सेहतमंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लंग्स नए हो जाए, लंग कैंसर जाता रहे, लंग्स की बीमारियां जाती रहे, दमा यीशु मसीह के नाम में जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। बदन का आज एक हिस्सा शिफा पाए और खासकर जो जाने हाँ किसी जुए बंधन में हाँ है, वो सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, गुनाह के बंधन टूट जाए। और इसी तरह से जो इब्लीसी नापाक रूहें हैं, इब्लीसी नापाक रूह, तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ठहरो इन बदलों को, ठहरो इन जिंदगियों को यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह का खून तुम्हारे खिलाफ है। यीशु मसीह का खून आज तुम्हें हर तरह से मौत देता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हर तरह का जादू टोना भी खत्म हो जाए, जादू टोने के असरात जल के भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज एक
درخواست یسوع مسیح کے نام سے اور یسوع مسیح کے خون سے آج ایک درخواست پوری ہو، اور یسوع مسیح کے خون کے سبب سے آج ہم دلیری کے ساتھ فضل کے تخت کے سامنے حاضر ہیں، اور وہ فضل اور رحم اور وہ قوت اور وہ برکت یسوع مسیح کے نام میں ریسیو کرتے ہیں، کیونکہ آسمان ہمارے لیے کھلا ہے اور آسمان ہمارے اوپر برکت برسا رہا ہے، معجزات کی بارش ہو رہی ہے یسوع مسیح کے نام میں۔ سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر اب شکر گزاری کریں، کیونکہ معجزے خداوند نے دے دیے ہیں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں۔ ہیلیلویا 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 ہیلیلویا۔ آپ پہلے جیسے نہ رہیں گے، آپ بدل گئے ہیں، یسوع کے خون نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا، بدروہیں بھاگ گئی ہیں اور رماندے ریبھلے لے بکرے بے سے۔ ہیلیلویا 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 ہیلیلویا، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ بالکل پیچھے میں نے ابھی فیل کیا ہے کہ خداوند کا مسا بڑے زور سے آ کے آپ کے اوپر آیا ہے، اور جس بندھن، جس جوے میں آپ تھے اور جس بیماری کی حالت میں آئے تھے، وہ بیماری جاتی رہی ہے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں اور شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں۔ ہیلیلویا۔ عزیزو، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ پاک روح کا مسا ہے جو آپ کو چھو رہا ہے۔ ہیلیلویا کے وسیلے یس 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 ہو گئے پاپ شما۔ یس 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 یس۔ اور اگر آپ نے اپنے بدن میں تبدیلی کو فیل کیا ہے، آزادی کو ایکسپیرینس کیا ہے، اطمینان آپ کے اندر آیا ہے اور جوؤں سے، جکڑوں سے آپ آزاد ہوئے ہیں، تو جلدی سے سٹیج کی طرف آ جائیں اور خدا کے خادموں کو بتائیں۔ اگر آپ نے اپنے بدن میں کوئی تبدیلی کو فیل کیا ہے یا معجزہ ایکسپیرینس کیا ہے، تو جلدی سے سٹیج کی طرف آ جائیں۔ ہیلیلویا۔ میری بائیں جانب آ جائیں اور خدا کے خادموں کے ساتھ اپنی گواہی کو شیئر کریں۔ ہیلیلویا 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 تیری صلیب سے یسوع پاگرو گی شفا، تیرا لہو، تیرا لہو، تیرا لہو کرتا ہے پاپ شما، کرتا ہے پاپ شما، تیرے لہو کے وسیلے ہو گئے پاپ شما۔ تیری صلیب سے یسوع پاگرو گی شفا، آپ کے روگ دور ہو رہے ہیں۔ تیرا لہو، تیرا لہو کرتا ہے پاپ شما، کرتا ہے پاپ شما، ہڈیوں میں جان جو نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنے بدن میں ابھی کوئی معجزہ اور کوئی خداوند کی قدرت کو ایکسپیرینس کیا ہے، تو جلدی سے بائیں جانب آ کر، سٹیج کی بائیں جانب آ کر جلدی سے اپنی گواہی خدا کے خدام کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ خداوند نے جلالی کام کیے ہیں اور خدا کا روح بڑے زور سے یہاں جنبش کر رہا ہے۔ ہیلیلویا 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 ہیلیلویا۔ ہڈیوں میں جان جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، ہڈیوں میں جان جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، درد بیاں جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، درد بیاں جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، دل
को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू हमको भी देगा शिफा, हमको भी देगा शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू हमको भी देगा जया, हमको भी देगा जया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागलों की शिफा। जी 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 फादी साहब आगे आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी 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 जी। पर सब ये बता रहे हैं कि जब ये बेटी को लेकर आए थे तो 102 103 बुखार था। अच्छा, लेकिन अभी जब आपने दुआ की है हालेलुया, तो जिस्म बिल्कुल ठंडा है, बुखार जाता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम थी बेटी को? जब पास्टर साहब इधर आए तो तकरीबन 102 103 बुखार था। जब आपने दुआ की अभी कुछ भी नहीं है, बेटी सुकून से सो रही है। हालेलुया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हालेलुया। जी 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 जी। ये परसब भाई बता रहे हैं कि एक हफ्ते से इनके घुटने बहुत दर्द कर रहे थे। मेडिसिन भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा जी। लेकिन अभी दुआ के दौरान बताते हैं खुदा के पाकरू ने इनको छुआ है और तमाम दर्द जाती रही है। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ ऊपर, आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा ये दर्द अब कभी ना आने पाए, यीशु के नाम में। दोनों हाथ ऊपर रहे, ऊपर रहे। यीशु के नाम, यीशु के नाम है। हालेलुया। हाँ जी, नीचे बैठे, नीचे बैठे, उठे ऊपर, फिर नीचे बैठे। हाँ जी, अब कैसा फील कर रहे हैं? कितनी देर से ये प्रॉब्लम थी? हालेलुया। और अब आप बिल्कुल ठीक है, सारी दर्द जाती रही। जोरदार तालियां खुदा के जलाल। जी बहन जी, क्या प्रॉब्लम थी आपके? ये पर साहब 2 साल से बदरू गिरफ्तार थी। अच्छा।
और शैतान ने इनको जकड़ा हुआ था। अच्छा, बताती हैं अभी दुआ के दौरान खुदा के रूह ने इनको छुआ है और ये आजादी महसूस कर रही हैं। जी बहन जी, कैसा फील कर रही है? मैं अपने आप को हल्का फील कर रही हूँ सर जी। मेरा चेहरा भी छोड़ा था, इससे पुलिस ने रात को सोने नहीं देता था, चूटियां बांधकर मेरे ऊपर गिरती। हाँ जी, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मेरे पीछे बोले मेरे पीछे। खुदावंद यीशु, खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तेरा खून तेरा खून मेरे लिए मेरे लिए काफी है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद, तेरा शुक्र हो, इब्लीस इब्लीस मेरे पांव के नीचे है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, मैं बेशक रातों को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बाजी जी, जब यहाँ पर आई थी तो ये बताती हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से आई थी, पूरा बदन दर्द कर रहा था और इनके हाथ ऊपर नहीं उठ रहे थे जी, लेकिन जैसे ही दुआ हुई है हालेलुया। ऐसे लगा है जैसे बदन में कोई नई नवेली ताकत एंटर हुई जो है। अपने हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। आपके हाथ ऊपर नहीं होते थे, दोनों हाथ ऊपर करें, नीचे करें, नीचे करें, हाथों को ऊपर करें। इस तरह से ऊपर नहीं होते थे आपके हाथ, दर्द थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब आप कैसा फील कर रही हैं? हाँ, अब मुझे आराम है, बिल्कुल मैं ठीक हो गई हूँ। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी तालियां ठंडी हैं। ओ हालेलुया। मेरे पीछे बोले, खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरे खून के लिए, तेरा खून मेरे लिए काफी है। हालेलुया। अपने हाथ ऊपर उठाएं, हाथों को लहराएं। हालेलुया, और जोरदार तालियां खुदा की।